Now we will look into another important case related to vomiting. So case number 6 is over. Now I think we'll go for case number 7 or case number 8, whatever. Okay. What's your opinion about this case? 8-year-old child presented with vomiting and difficulty in walking for last 4 weeks. बहुत typical है. Child is having vomiting and there is a difficulty in walking. Difficulty in walking is another important symptom. वो कब से हो रहा है? Since last 4 weeks. Now what is the relationship between difficulty in walking and vomiting? Do you have any idea? इसको वॉकिंग प्रॉब्लम हो रहा है और उसके साथ उसको वोमिटिंग हो रहा है. किसी को कोई आइडिया मिल रहा है क्या हो सकता है? वेस्टिबुलर एपरेटस का कुछ. Okay, it may be related to vestibular apparatus related problem. Okay, very good. Any other ideas? Look at the other symptoms. Vomit usually 1 to 2 times in the morning. Morning hours में ज़्यादा हो रहा है उसको vomiting. And we know that morning hour vomiting is suggestive of what? And not throughout the day. Throughout the day उसको vomiting नहीं है. सुबह उठते ही जो है morning hours में उसको vomiting ज़्यादा है. Anybody? Morning hour vomiting related to? Sir, intracranial कुछ. Something is there. Intracranial pressure problem is there. Okay. So let us discuss that. And there is no pain while walking. While walking there is no pain. But there is difficulty in walking is there since last 4 weeks. And after asking a direct question, हमने direct question पूछा मदर से कि कोई और प्रॉब्लम है क्या बच्चे को. तो then mother told he is irritable in the morning. He is quite irritable in the morning. उसके बाद सही हो जाता है but morning में थोड़ा बहुत irritable है. So one thing is very clear, child is having vomiting and since last 4 weeks gradually child is also having difficulty in walking and morning vomiting is there and there is also some irritability. Now things are almost all clear. Okay, so therefore asking each and every question is very important. Okay, we should not go superficially. Associated symptoms, personal history, this sick child or well child, acute onset, chronic onset, these are some of the basic जो चीज़ है जिसके साथ हम खेलते हैं, उसी में हमें आंसर मिलता है. एंड इसको आप थोड़ा फोकस करो, इसी में से आंसर आ जाएगा और कुछ बड़ा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ. Okay, so there is vomiting. So if there is a vomiting, we have 3 groups. It may be from the GIT, it may be from the neurological or it may be from the autonomic. जैसा हमने देखा है ना, GIT से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है या रीनल हो सकता है. 4 ग्रुप बना सकते हैं. रीनल हो सकता है या ऑटोनॉमिक हो सकता है. तो देखेंगे इन दिस केस इट इज न्यूरोलॉजिक. व्हाई इट इज न्यूरोलॉजिक? बिकॉज वोमिटिंग इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन वॉकिंग and also irritability to some extent. So definitely it is not GIT, not renal or not even autonomic nervous system, and definitely this is related to neurological or renal भी नहीं है. Definitely this is neurological because there is difficulty in walking. Difficulty in walking, that is because of the muscles. Muscles are supplied by the nerves. Nerves means they are the white क्या है कि white matter or tracts. Okay, so there may be some problem related to neurological system. Therefore, he is having a difficulty in walking. Okay, so if neurologic, we have again got 2 options. चलो neurologic हो गया. अगर neurologic हो गया तो हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है वोमिटिंग के लिए. या तो वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन की वजह से हो रहा है या तो कोई मेटाबॉलिक कारण की वजह से हो रहा है. कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकता है. या कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी में हैं, ब्लड में है, वो जाके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को इरिटेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है. ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है. ओके, बट आपको पता है कि मेटाबॉलिक अगर होता है तो यूजुअली क्या है, इट इज ऑलवेज एन एक्यूट प्रेजेंटेशन. पिछले केस में भी हमने देखा था मेटाबॉलिक सडन अपेरेंस, सडन रीअपेरेंस, डिसअपेरेंस, सडन रीअपेरेंस है ना, तो वो हमेशा एक्यूट होता है. बट यहाँ पे इतना एक्यूट नहीं है क्योंकि 4 वीक से धीरे 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 उसका डिफिकल्टी इन वॉकिंग आ रहा है. सो इट इज़ नॉट सच एक्यूट कंडीशन. सो if the metabolic is there, definitely it is acute presentation, but again it's clear that it is not acute. So vomiting center chemoreceptor trigger zone को irritate कर रहा है बट कोई metabolic like function नहीं है, metabolic derangement नहीं है, तो हमारा पास बच्चा है कुछ और चीज़ है जो chemoreceptor trigger zone को धीरे 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 प्रेस करता होगा शायद, है ना. तो इसलिए ये प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ता जा रहा है. ओके, सो दिस मस्ट बी इस
कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कॉज, तो क्या हो सकता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर प्रेशर धीरे 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 बढ़ रहा है. यस, दिस में बी ए केस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन, है ना. कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ रहा है, इंट्राक्रैनियल टेंशन इंक्रीज होता जा रहा है, वो तो ऐसे एक बार में थोड़ी होगा, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है. तो इसको जैसा वो जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर भी जो है प्रेशर बढ़ रहा है, वोमिटिंग बढ़ता जा रहा है, और वो जो प्रेशर न्यूरॉन बाकी नर्वस सिस्टम के पार्ट के ऊपर भी पड़ रहा है. हो सकता है कि वाइड ट्रैक्स के ऊपर पड़ रहा है, कोई ट्रैक्स के ऊपर पड़ रहा है वो प्रेशर, एंड देयरफॉर डिफिकल्टी इन वॉकिंग भी आ रहा है उसको. ओके, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. सो कॉजेस ऑफ स्लोली रेजिंग आईसीटी इन द ब्रेन क्या है, धीरे धीरे आईसीटी बढ़ रहा है ब्रेन के अंदर. मेनिंजाइटिस वगैरह है तो बहुत फास्टली बढ़ता है आईसीटी, है ना. धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो तो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉज ही होना चाहिए, है ना. कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है, ब्रेन ट्यूमर्स हो सकता है ना, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ब्रेन ट्यूमर्स लाइक, और इट में बी स्लोली डेवलपिंग हाइड्रोसेफेलस, स्लोली डेवलपिंग हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है. सो नाउ चलो, ये तो दो कॉज हो गए. नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट, देयर इज आल्सो डिफिकल्टी इन वॉकिंग. ओके, सो मतलब वो जो कंप्रेशन चल रहा है, जो इंक्रीज इंट्रैक्टल टेंशन जो बढ़ रहा है, सो दैट इज आल्सो पुटिंग प्रेशर ओवर सम ऑफ द ट्रैक्स और सेंटर्स, कहीं ना कोई सेंटर को या ट्रैक्स को या आपका पिरामिडल ट्रैक्स के ऊपर उसका प्रेशर पड़ रहा है. नाउ अगेन इन द हिस्ट्री देयर इज अ डिफिकल्टी इन वॉकिंग. ऐसा नहीं है कि वो गिर रहा है ना, चल ही नहीं पा रहा, ऐसा नहीं है. डिफिकल्टी इन वॉकिंग, उसका महसूस होता है कि वो चलते वक्त जो है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, सो ही इज वॉकिंग बट देयर इज डिफिकल्टी इन वॉकिंग. सो ही इज वॉकिंग बट देयर इज अ डिफिकल्टी मीन्स द पावर इज ओके. ओके, द टोन इज एबनॉर्मल. सी कितना अच्छे से आपको इसको इवेल्यूट करते जाना है. ठीक है, वो चल रहा है बट चलते वक्त उसको डिफिकल्टी होता है. चल रहा है मतलब चल रहा है मतलब क्या है, मसल का पावर सही है इसलिए वो तो चल रहा है. फिर भी उसको चलते वक्त उसको डिफिकल्टी होता है, मतलब उसका मसल बीच बीच में हाइपरटोनिक हो जाता है, मसल स्टिफ हो जाता है, इसलिए उसको चलने में दिक्कत होता है. ओके, नाउ पावर ऑफ द मसल इज ओके बट टोन ऑफ द मसल इज अफेक्टेड. ओके, टोन ऑफ द मसल इज अफेक्टेड. सो मोर टोन विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स, है ना. जैसा सीपी के बच्चे में आप देखते हैं उसका टोन बढ़ा हुआ है, स्पैस्टिसिटी है, इसलिए उसको चलने में दिक्कत होता है. ठीक है, सो मोर टोन विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग देन लो टोन ऑफ द मसल. मसल में अगर टोन थोड़ा कम है तो चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना. डाउन सिंड्रोम का बच्चा चल के आता है आपके पास, लो टोन होता है, ठीक है, बट चलने में प्रॉब्लम जब आता है जब आपका मसल एकदम लिम्ब एकदम स्टिफ हो गया ना, तब चलने में प्रॉब्लम आता है. दैट मीन्स टोन इज इंक्रीज देन इट लीड्स टू प्रॉब्लम विद द वॉकिंग. टोन इज डिक्रीज, प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो नाउ एज बोथ लेग्स आर इन्वॉल्व, दूसरा इस केस में क्या है कि उसको डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, दोनों पैर में है, बोथ द लेग्स आर इन्वॉल्व. सो इन दिस केस स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इज जनरलाइज्ड लाइक वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन. यूजुअली दोनों लेग्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है. अगर एक ही लेग इन्वॉल्व हुआ है तो हम बोल सकते थे कि कोई लोकलाइज लीजन है वहाँ पे चल रहा है ना. कोई ना कोई न्यूरॉन्स मतलब सेरेब्रम में या सेरेबेलम में कहीं ना कहीं जो है लोकलाइज लीजन है, इसकी वजह से प्रेशर है, इसलिए एक साइड चला गया. बट ऐसा नहीं, यहाँ पे दोनों साइड चला गया, दोनों साइड में उसको प्रॉब्लम है. सो इसका मतलब क्या है कि पूरा जो पेरीवेंट्रिकुलर एरिया है ना, जो बेस ऑफ द ब्रेन पेरीवेंट्रिकुलर एरिया, तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिकली यूनिफॉर्म तरीके से प्रेशर बढ़ता 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 जा रहा है. ओके, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है तो लोकलाइज्ड होता है ना. राइट साइड में कोई ट्यूमर है तो राइट साइड का ही प्रेस होना चाहिए और बच्चे को एक लेग में प्रॉब्लम होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज दिस केस? दिस केस इज स्लोली डेवलपिंग हाइड्रोसेफेलस. ओके, सो दिस केस इज स्लोली डेवलपिंग हाइड्रोसेफेलस. जैसा जैसा वो प्रेशर डाल रहा है वोमिटिंग सेंटर के ऊपर, वोमिटिंग आ रहा है, जैसा जैसा वो प्रेशर डाल रहा है आपका बेस ऑफ द ब्रेन में जो पास होता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स, दो जो है डिफिकल्टी इन वॉकिंग आ रहा है. ओके, सो केस इज दिस इज ए केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस, स्लोली डेवलपिंग हाइड्रोसेफेलस विद एक्वेडक्ट स्टेनोसिस, मतलब कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस. नॉन कम्युनिकेटिंग है तो बहुत फास्टली प्रोग्रेस होता है,
कम्युनिकेटिंग में स्लोली प्रोग्रेसिव चलता है, क्योंकि बंद तो नहीं है ना, इसलिए प्रेशर थोड़ा मेंटेन होता है, बट धीरे 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 प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। सो दिस इज ए केस ऑफ अ स्लोली डेवलपिंग हाइड्रोसेफेलस। सो व्हाट वी हैव मिस्ड हियर इज, इस केस में हमने जो मिस किया वो क्या, हमने उसका हेड सर्कम्फ्रेंस नहीं देखा। ओके, सी हेड सर्कम्फ्रेंस हैज टू बी सीन, बट वी हैव नॉट सीन हेड सर्कम्फ्रेंस इन दिस केस, ठीक है। तो ये इसलिए दिस में बी वन ऑफ द लैक्यूना इन आवर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अगर आपका नज़र हेड सर्कम्फ्रेंस के ऊपर पड़ गया होता ना, तो जैसा आपको लगा कि वोमिटिंग भी है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, इरिटेबिलिटी है, मॉर्निंग आवर्स में होता है, सो मतलब तुरंत देखना चाहिए था हेड सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। सो देन डेफिनेटली द डायग्नोसिस वुड हैव बीन क्लियर। सो दिस इज अबाउट the slowly developing hydrocephalus. Now the few more cases are there regarding approach of vomiting, and these are some of the common cases. The next cases we will see in the next class. Thank you.